Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here about the next topic of chapter ray optics and optical instrument. In previous video I have explained about the refraction of light through the refracting surface, convex refracting surface, concave refracting surface, and we get that time formula for when the light goes from rare to denser medium. That time the formula is n2 minus n1 over r is equals to n2 over v minus n1 upon u. And similarly, when the light ray goes from denser to rarer medium, then the formula of refraction, or you can say refraction formula, n1 minus n2 over r is equals to n1 upon v minus n2 upon u. Point clear? On the basis of this formula and the previous theory, here we will talk today about the Lensmaker's formula. Lensmaker's formula is used for making a desired focal length, or you can say desired power lenses, by combination of two spherical surfaces and by using the suitable material and also the radii of curvature of two spherical surfaces. So for that we will write here first heading Lensmaker's formula. Point clear? So here we will talk about first Lensmaker formulas, as we have done about how we will use and why we use here Lensmaker formula to obtaining a suitable focal length or power lens by combination of two spherical surfaces of suitable material and suitable radii of curvature. Now here after that, Lensmaker formula gives us a relation between focal length, point clear, and refractive index and also radii of curvature of two spherical surfaces. Point clear? And if you think about the formula here, I will give you initially the formula is 1 upon f is equals to mu minus 1 upon r1, 1 upon r2. This formula we will prove. And this formula is called Lensmaker formula. Remember this formula. This is very useful for your numerical portion. Now for that we will start here derivation of Lensmaker's formula. For this condition we will take some assumption. Assumption number 1, here we use the lens to obtain the derivation of Lensmaker formula is in small in aperture. Second, the object which we are taking here, object should be point object. Point clear? And when we are taking here point object, here its image is also point. So that time we can say that the rays which are emerging from the object to the lens and after that by refracting from the lens to that location of image, so we can say that incident and refracted ray, we will draw this diagram, then after you will see refracted ray makes small angle with principal axis Now see the diagram first, after that we will see here. So I will use this relation. So see this diagram. This is my first surface which is convex. When the light ray goes from, this is rare medium and this one is denser medium. Here I am showing the denser medium by this only parts, by liner or dotted shaded part. So when the light rays, as I have done here, point object should be small.
So object should be point object. So here O is our object. When the light ray goes from denser to rarer medium, and we know that if we talking about this spherical surfaces, suppose S P1 and S2, S1 P1, S1 P1, S2 is our first spherical surface. So their center of curvature point somewhere else, here C1. Now if we draw the perpendicular from this point like this, suppose just for a time. So if suppose this is our perpendicular and light is going from rare to denser medium, it bent toward the normal, so that their image I1 will form in this side. This is the real image for this object O when the light ray goes from rare to denser medium through the convex spherical surface. And if we talk about their formula, light is going from rare to denser, so I will use this relation. So let's start. See here, see the points. Object is point object, and now last four, since in this lens maker formula, lens is thin, so all the distances measured from its center of curvature as we are measuring from pole of the surfaces means that यहाँ पे इनिशियली हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे यू वी, अभी यहाँ पे वो हम, आप देखिए इनिशियली हम जो मेजर कर रहे हैं वो इसके पोल से मेजर करेंगे. जैसे देखिए फर्स्ट केस में क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है, S1 P1 और S2, और यहाँ से आपके पास लाइट गई रेयर टू डेंसर मीडियम. तो अगर P1 से मेजर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, अगर P1 से मेजर कर रहे हैं तो ये U हुआ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है. इसको अभी यहाँ पे रखेंगे, लेकिन जब हम सेकंड कंडीशन अभी इसमें अटैच करेंगे और ये कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, तो उस केस में इस लेंस की जो थिकनेस है वेरी स्मॉल है, तो ये P, और अभी हम आगे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस ऐसे, ठीक है. ये है, ये P1 पॉइंट है, अगर इसका यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कंसीडर कर रहे हैं, ये P1 है, ये आगे चल के P2 बनेगा पोल इसका, और ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर C है. तो इस केस में ये थिन लेंस है, तो ये और ये P1 एंड P2 कोइंसाइड कर जाएंगे C से, तो इसलिए हम जो फाइनली जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो इसके P1 से मेजर ना करके डायरेक्टली हम कहां से मेजर करेंगे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ये कहना चाह रहा है ये वाला पॉइंट. पॉइंट क्लियर? बाकी सब पॉइंट तो आपके क्लियर ही होंगे, ठीक है. तो ये चीज आपके पास यहां से आपको क्लियर हुई. अब मैं थोड़ा सा इसे ड्रॉ कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है. इसको रुक के अब नाउ सी, अब हम इसके बाद इन एजम्पशंस के बाद स्टार्ट करेंगे इसका डेरिवेशन. तो देखिएगा ये पहला स्पेरिकल सरफेस था, एजम्पशन नोट कर लीजिए. आफ्टर दैट we will start their derivation. So pause the video and note down. So after this, see, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन. हम यहाँ पे first, when the light ray goes from rare to denser medium through this convex spherical surface, case 1 from the diagram, case 1, when the light ray goes from first spherical refracting convex surface. So in this condition, see, you can see this convex surface is our first. So u आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है, और आपका जो ये इमेज बन रही है इसकी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, I1 की डिस्टेंस फ्रॉम दिस P1. therefore we can use N2 minus N1 ओवर, अब ये फर्स्ट लेंस है, फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी इसके लिए उसको आप पता है R1 है, और R1 आपका राइट हैंड साइड है, तो इट विल बी पॉजिटिव.
So after that, here I am using this relation. It is already prepared, means by using sign convention final relation I will use. So n2 upon v minus n1 upon u. See here, it is a r in random form, और यू कैन राइट r1 डायरेक्टली. अच्छा देखिए v1 v जो आपके पास है यहाँ पे v की जगह क्या रिप्लेस कर रखा है यहाँ पे v1, सो इट विल बी रिटन एज v1. एंड u जो आपके पास है कैपिटल U जनरल फॉर्मूले में लिखा है, u आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका u1. पॉइंट क्लियर, आपके पास हो जाएगा u, सॉरी नॉट u1. So this is your equation number 1. By using the sign convention finally we can write this relation in this way. ठीक है. अब इसके बाद क्या है केस 2, when the second refracting surface, when the second refracting जो surface है is used or connected with first. So see, जब इसमें सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी आपके पास कॉन्वेक्स ही होगी, देखिए ये है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बट इसमें डिफरेंस क्या है पहले वाले के कंपैरिजन में, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा थिक बन गई है, लेकिन ये थिक नहीं रहता है रियल में, ठीक है. जो डायग्राम है इसका थिन फॉर्मेट में आएगा. अब अभी आप इसे बनाइएगा दोबारा से, ठीक है. यहां से अगर आप इसको इरेज करके दोबारा देखना चाह रहे हैं तो सी दिस वन, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर हम हटा देंगे, ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके जनरल नोटेशन के लिए लिया था, दिस वन, एंड दिस इज योर thin lens and this is the center of curvature and it is P2 pole of that. So यहाँ पे देखिए अब जैसे ही हमने दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस लगाया, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपको पता है ये भी आपके पास क्या है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. इस डायग्राम में बाई कॉन्वेक्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो जैसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस लगा, लाइट रे पहले तो यहाँ से आपके पास बेंड हो रही थी, ठीक है. पहले इसका जो रिफ्रैक्शन था ड्यू टू फर्स्ट स्पेरिकल सरफेस था, जैसे ही दूसरा स्पेरिकल सरफेस लगा, ये वाला आपके पास देखिएगा स्टूडेंट, ये स्पेरिकल सरफेस जैसे ही कनेक्ट में आया, इसके कनेक्शन में आया, ठीक है, तो ये आपके पास क्या है रेयर है, ये आपका डेंसर पार्ट है, ठीक है. तो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है और सरफेस आपका कॉन्वेक्स है, आपको पता है. तो उस केस में अब लाइट अब डेंसर से रेयर में जाएगी, तो यहाँ पे जब लाइट इस वाले आधे पार्ट से आगे ट्रेवल करेगी तो थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो यहां से क्या हो जाएगा, जो आपके पास डेंसर पार्ट है उससे और बेंड होगी, और ये लाइट जो है ये कहीं यहाँ पे थोड़ा सा इधर इस तरीके से आपके पास बेंड हो जाएगी. सपोज C1 को थोड़ा शिफ्ट करता हूं पॉइंट को, यहाँ पे आपके पास इमेज मिल जाएगी आपको I1 एंड I. इस डायग्राम को आप पेंसिल से बनाइए तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है. अब आपके पास क्या हो गया, ये जो आपके पास फाइनल इमेज मिली, अब इसको आप डॉटेड डॉटेड कर सकते हैं. फाइनल इमेज आपको ऑब्जेक्ट की O, ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसकी फाइनल इमेज बाय रिफ्रैक्टिंग थ्रू द कॉन्वेक्स स्फेरिकल बाय कॉन्वेक्स लेंस और टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये आपको आई पे मिल जाएगी. अब इसकी पोजीशन एज वी हैव डन इन assumption वी विल मेजर ऑल द डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस. So as we have done all the distance we measure from the optical center of this lens. So here it is U with negative sign and it is R1, and similarly here this is our P2 means second refracting surface. So suppose it is C2. So यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी इसकी R2. पॉइंट क्लियर. बाकी आपके पास जो फाइनल इमेज मिल रही है उसकी जो डिस्टेंस है ये आपके पास V1 थी, ठीक है, ये आपके पास फाइनल इमेज की V आ जाएगी. ये सारे आपके पास वैल्यूज आपने डायग्राम पे शो कर देनी है. उसके बाद क्या, व्हेन द लाइट रे, when the second convex refracting surface used in connect with first, then light ray again
bends and final image is formed at I nearer to I1 with respect to optical center. Point clear? So इस केस में light is going from you can write light is going from denser to rarer medium. Listen carefully. So here the formula format will be, see, n1 minus n2 over r, this is our second refracting surface r2, and equals to n1 upon v minus n2 upon u. See here the point v, vu, यहाँ पे देखिए बच्चों जो v है आपका वो आपका फाइनल इमेज दे रहा है, ठीक है, इसमें कहाँ पे, p पोजीशन पे। लेकिन इसके लिए जो हम ऑब्जेक्ट u की बात कर रहे हैं ना, इस केस में हमारे पास क्या है कि जो I1 का रोल जो प्ले होगा, ठीक है, जब फाइनल इमेज हमें I पे मिल रही है बाय यूजिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस इन कॉम्बिनेशन हियर, तो उस केस में I1 का जो रोल प्ले होगा एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा फॉर दिस रियल इमेज I ऑफ O। जो O की रियल इमेज I बन रही है उसके लिए I1 क्या करेगा, यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक नोट करके लिख सकते हैं, फॉर फाइनल इमेज फॉर I1 वर्क एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट सेम साइड है इसलिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करते हुए हम आगे देखिएगा क्या चेंज करने वाले हैं। तो u की जगह जो आपके पास है वो p1 आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है? और r2 आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। n1 n2 में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास रेयरर मीडियम का, और n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास डेंसर मीडियम का। डोंट बी कंफ्यूज्ड। पॉइंट क्लियर? सो आफ्टर दैट वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। n1 अपॉन v की जगह हम लिख लेंगे v, फाइनली v है आपके पास, ठीक है। अगर ऐसे सिंबल में रिप्रेजेंट करना है ऐसे कर दीजिए, तो कैपिटल लेटर है, आप इसको स्मॉल में इस फॉर्मेट में दिखा दीजिए v, ठीक है। माइनस n2 अपॉन u आपके पास है v1। पॉइंट क्लियर? यहाँ पे देखिए v1 यहाँ पर है और बाकी चीज यहाँ पर है। ये जो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले, ये आफ्टर यूजिंग साइन कन्वेंशन है, इसमें दोबारा से साइन कन्वेंशन लगाने की कोई नीड नहीं है। पॉइंट क्लियर? अब देखिए इसके बाद मैं एस कर रहा हूं इस पोर्शन को, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक फाइनल इक्वेशन जो आपके पास यहां पर है वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें ये मिल गई थी, व्हेन द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड देन सेकंड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और फाइनल इमेज आपको मिल गई, डायग्राम आपको मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, इस केस में आपके पास दिस फॉर्मूला, ठीक है। एंड सी हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशन, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये इक्वेशन ऐसे ही लिखी हुई है, इनको टाइम टू टाइम हम इरेज कर देंगे, देखते रहिएगा। सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया, तो देखिएगा अगर हम इस इक्वेशन को n2 माइनस n1 के फॉर्मेट में बनाएं, कॉमन लेने के लिए इजी रहेगा, तो जो सेकंड इक्वेशन है उसका फाइनल लुक कैसा आएगा, यहाँ पे 1 इज आवर सेकंड, अगर यहाँ पे आपके पास n2 माइनस अगर मैं कॉमन लूं तब आएगा आपके पास ये फॉर्मेट। पॉइंट क्लियर? ये इक्वेशन सेकंड का नया फॉर्मेट आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, बाय एडिंग, तो हमें यहाँ पे n2 माइनस n1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे ही देखना चाह रहे हैं, इन दोनों को हमने ऐड किया तो n2 माइनस n1 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 1 अपॉन r1 पोर्शन यहां से मिलेगा मुझे, फिर माइनस के साथ 1 अपॉन r2 पोर्शन यहां से मिलेगा।
पॉइंट क्लियर। उसके बाद आप देखिए इन दोनों में आपके पास यहाँ पे जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ पोर्शन कैंसिल होगा, और वो क्या है n2 अपॉन v1 नेगेटिव, n2 अपॉन v1 पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, यू कैन टेक कॉमन n1 फ्रॉम दिस साइड, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u is equals to n2 माइनस n1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, पॉइंट क्लियर। अब हम इस n1 को यहाँ पे डिवाइड में दे देंगे, n1 इससे डिवाइड होगा तो ये बनेगा आपके पास n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 इज 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अगर आप लेंस फॉर्मूला की तरफ थोड़ा टेंड करते हैं, लेंस फॉर्मूला इसके किसके इक्वल होगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये आपके पास बाय लेंस फॉर्मूला ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन f के, दिस पार्ट, और ये पार्ट हम लिख देंगे n2 अपॉन n1, इसको हम लिख सकते हैं n21 माइनस 1 एंड 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, पॉइंट क्लियर। अगर सपोज पहला मीडियम जो है आपके पास, ठीक है, वो वैक्यूम है जो रेयर मीडियम है, तो उस केस के लिए जो n21 है उसकी जगह आप लिख सकते हैं n ओनली, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दैट। सो इसको रिप्लेस करके आप ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, पॉइंट क्लियर। अब आपको ये पता है, ठीक है, ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया है आंसर। अब आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सब चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लेके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने जो फाइनल आंसर में आया है n आ गया। अगर आप इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के टर्म्स में चलते हैं, म्यू2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 वाली फॉर्मेट में चलते हैं, तो उस केस के लिए यहाँ पे म्यू1 अगर म्यू2 लिख रहे हैं तो उस केस में जो आपके पास n है उसकी जगह रिप्लेस कर दीजिएगा म्यू, ठीक है। यहाँ पे आप म्यू भी लिख सकते हैं, और फाइनल रिलेशन जो आपको मिलेगा वो आपके सामने है जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या है जो डिजायर्ड फोकल लेंथ का जो लेंस बनाना होता है, ठीक है, उसको बाय यूजिंग सुटेबल रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस एंड आल्सो सुटेबल मीडियम और मटेरियल हम बना सकते हैं, पॉइंट क्लियर। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू. So to understand them, pause the video and note down and practice also.